ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابق نہیں رکھتے۔ اے ام المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرمانبردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی وجہ سے اسے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طنز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنی والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد
से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकती है कि उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दरस दें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़यात बताया करें। उनके तर्ज़ ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर जन्नत वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो उस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। यह उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत व रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितने और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि उन फितनों को रोकते हैं वह तो उस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वह पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करें। आपके मुशाहिदे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़ुबान जद आम होती है। अक्सर औरतें यह कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। नाज़रीन, अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़यात बताएं और उन्हें बताएं कि उनकी रोल मॉडल कौन होनी चाहिए। आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक वाक़या सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को घर जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप अल्लाह ताला ने अपने चेहरे को ढाँप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फ़ातिमा, यह सहाबी तो नाबीना है, आपने क्यों चेहरा ढाँप लिया? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि बाबा जान, मुझे गैर मोहरिम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, ना कि उन अफराद से जिनको नज़र आता है। नाज़रीन, यह यहूदियों की चाल है कि इज़्ज़त के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम माशरे के अंदर परवान चढ़ाना। लिहाजा उस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा कराम और अहल बैत की ज़िंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वह वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वह दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी उस बुरे अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बड़ा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी रहमान व रहीम ज़ात है। अल्लाह ताला माँ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद जो परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुताल्लिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुताल्लिक बना देता है। जैसा तुम किसी की
बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छिप छिप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वह सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वह सहाबी जब घर गए तो देखा उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वह सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह, यह क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वह नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, यह तो कतई हराम है। हराम वह जो कि हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी धोखा फ्रॉड करके इसका हक़ खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक़ खा लिया जाए तो यह भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल यह बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले उसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।